जी सर। Dear students, welcome back to National Academy's digital platform once again. Today we will be learning about a very important topic, that is determiners. First of all, I would like to define this term, that a determiner is a word which determines or identifies a noun in a sentence. Many times you will find, I will prove it through the examples, that the same word is taken as or works as a noun and or a verb in a sentence. So when we will learn, or when we will be sure that whether it has been used as a noun or a verb in a sentence, it is the determiner or it is the use of a determiner which ensures that this particular term has been used as a noun in place of a verb. That's why the usage of a determiner is very necessary for ensuring this. I am giving you one example through this sentence, guard watches carefully. In few of my classes I have already explained and we have discussed this term, that a guard watches carefully. You will find the meaning of this sentence. I have asked many of our students that what it translates in Hindi. What is the meaning of this sentence in Hindi? That usually our students do say that guard सावधानी पूर्वक रखवाली करता है. अगर हम इस वाक्य का हिंदी में मीनिंग लें तो बच्चे यूजुअली कहते हैं कि पहरेदार, गार्ड को हम पहरेदार अगर मान लें, रखवाला मान लें, तो इसका यूजुअली मीनिंग बच्चे हमें बताते हैं कि पहरेदार सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक रखवाली करता है. इस मीनिंग के अगर अनुसार हम चलें तो गार्ड ऐसी हालत में नाउन होगा, वॉचेस वर्ब होगा, केयरफुली एडवर्ब होगा. ओके, going by this meaning, these words falls under the category of this one, noun, verb and adverb. और यही अर्थ मुझे अभी तक मैंने जितनी बार जिस भी स्कूल में और जिस भी क्लास में बच्चों को पूछा है, बच्चों ने यही मीनिंग बताया है. लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये मालूम होगा, जब असर्टिव सेंटेंस के तौर पे ये वाक्य यूज होगा तो इसका मीनिंग यही होगा. बट व्हेन वी यूज दिस सेंटेंस एज कमांड्स तो इसका मीनिंग बदल जाएगा. तो एक मीनिंग वो हुआ, लेकिन मैं इसका दूसरा मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूं. मान लीजिए मेरे हाथ में ये वॉच है, दिस इज द वॉच. इफ वी मेक द प्लूरल ऑफ दिस वर्ड वॉच, इट इज वॉचेस. अब उस हिसाब से वॉचेस नाउन हो जाएगा. तो अगर वॉचेस नाउन हो जाएगा और गार्ड वर्ब भी हो जाएगा, क्योंकि हम कमांड्स देते हैं तो सेंटेंस के शुरुआत में ही जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह वर्ब होता है. अगर ऐसा हुआ तो इस सेंटेंस का मीनिंग पूरी तौर पे बदल जाएगा और वो हो जाएगा गार्ड वॉचेस केयरफुली, यानी घड़ियों की सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक रखवाली करो. सो गोइंग बाय दिस टू मीनिंग्स ऑफ दिस सेंटेंस, वी फाइंड दैट there would be double meanings of the sentences if we use the sentences like that. So to avoid this double meaning or confusion, our grammarians have made the provisions of the determiners. The solution comes with the use of a determiner in sentence, and it ensures that this particular word has been used as a noun only. For example, what I am doing, I am writing this sentence once again, and it may be written
to be very sure, it may be written as the guard watches carefully. यानी पहले जो हमने बिना किसी डिटरमाइनर के यहाँ पे इस्तेमाल किया था और ये सेंटेंस हमें डबल मीनिंग दे रहा था, अब इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, गार्ड शब्द के पहले एक डिटरमाइनर लगा देंगे और सेंटेंस हो जाएगा द गार्ड वॉचेज केयरफुली। इसका मतलब होगा कि पहरेदार ध्यानपूर्वक रखवाली करता है। यानी ऐसी हालत में जो गार्ड शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा, इट कांट बी टेकन एज अ वर्ब इन द सेंटेंस। Similarly, if we want to use this sentence for the different meaning कि घड़ियों की ध्यानपूर्वक रखवाली करो, तो हम लिखेंगे गार्ड the watches carefully. Okay. Once again, if we want to use the term guard as a verb and watch as a noun in the sentence, once again, what we will do? We will use a determiner before the word watches, and the meaning would be कि घड़ियों की ध्यानपूर्वक रखवाली करो। इस तरीके से किसी वाक्य में शब्द को यह बताने के लिए कि यह शब्द नाउन है, हम डिटरमाइनर का इस्तेमाल करते हैं। सो डिटरमाइनर्स फॉल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट, जितने भी आर्टिकल्स हैं, अगर हम देखें कि डिटरमाइनर्स कितने तरह के होते हैं, तो वो हम इस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। और अब मैं लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए डिटरमाइनर शब्द की एक परिभाषा लिखता हूं या बोल देता हूं। यू कैन राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ दैट अ डिटरमाइनर इज अ टर्म which determines or identifies a noun in a sentence and it precedes a noun. It precedes a noun means determiner किसी नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स और इसमें आ जाएगा, पहला है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ए एंड द, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आर्टिकल्स में ए एंड द आता है। इनका इस्तेमाल हम किसी न किसी नाउन के पहले करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि इसके बाद आने वाला जो शब्द है वह नाउन है, वर्ब नहीं है। सिमिलरली जितने भी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ये जितने पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, फॉर एग्जांपल माई, आवर, हिज, हर, देयर, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर का काम करते हैं। आगे हम यूजेस को देखेंगे, इनका सही इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कहां पे ये डिटरमाइनर हो जाएंगे वो हम देखेंगे। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल दिस, दैट, these and those. All these terms are known as demonstrative adjectives
and they fall under the category of determiners. आगे लिखता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव में आ गया ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. Neither. Then it comes the number of adjectives of number. शॉर्ट में लिख देता हूं मैं नंबर एंड क्वांटिटी. इसमें आते हैं आपको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी को अलग अलग शब्दों से भी कई बार हम संबोधित करते हैं, जैसे क्वांटिफायर्स एंड नंबर्स. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड क्वांटिफायर्स. क्वांटिटी बताने वाले शब्द जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें क्वांटिफायर्स भी कहते हैं, या एडजेक्टिव्स ऑफ आप क्वांटिटी कह सकते हैं. उसी तरह से एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स होते हैं. तो इसमें आ जाते हैं जैसे हम जितने नंबर्स लिखते हैं like 1, 2, 3 and indefinite. Similarly, first, second, third and up to unlimited. These are adjectives of numbers. उसके बाद adjectives of quantity आते हैं, या numbers भी उसमें हैं, जैसे sum. तो ये पार्टिकुलर वर्ड सम जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के तौर पे भी यूज होता है और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के तौर पे भी यूज होता है. सम, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, मच मोर, बहुत सारे हैं. फ्यू, लिटिल, मोर मेनी तो आ गया एक बार जब हमने लिख दिया. सम, एनी, मच, फ्यू, लिटिल एटसेट्रा. हाँ, अ लॉट ऑफ इस तरह का जो फ्रेजल टर्म्स हैं वो भी आ जाते हैं. अगर वो क्वांटिटी किसी चीज का या नंबर बताते हैं तो भी आ जाते हैं. इसके अलावा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के 3 शब्द हैं, ये भी डिटरमाइनर्स के तौर पे काम करते हैं सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच एंड हुज. व्हाट, विच एंड हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं. ऑल दीज टर्म्स आर यूज्ड एज डिटरमाइनर्स. मैं इस चीज को और आपको क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूं. Okay, we will be doing some examples to understand its meaning. I am writing down few sentences and there are
fill in the blank spaces we have to solve. For example, she asked me for blank space ice, but I could not find ice, but I could not find आपके पास इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए ऑप्शन है सम एंड एनी. Let us see how we will fill in the blanks choosing from these options. For example, here she asked me for some ice. यहाँ पे हम some चूज करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे हम any का चुनाव करेंगे. So this would be the right answer. She asked me for some ice, but I could not find any. So this is the right answer. Similarly, if there is another sentence, put blank space bread on the table. Here your right answer would be put some bread on the table. Okay. When in next topic, if necessary, I will make another video on the topic for dealing different kinds of determiners and how they would be used in a sentence properly. So I will have more examples, good examples I will share with you, and we will do and learn how we do the proper uses of all these determiners. Thank you for the day.